मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नगर निकाय चुनाव को लेकर आपको याद होगा एक मामला चल रहा था जो सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार था, जिसमें हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई हुई थी और 31 जनवरी इसी वर्ष 31 जनवरी 2024 को उसका निर्णय दिया गया था, ऑर्डर आया था। और उस ऑर्डर में उन सारे चीज़ों को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद एक तरह से कहें कि पूरी तरह शांति छा गई थी और जो याचिकाकर्ता थे सुनील कुमार, उन पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, तरह-तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन मैं आज इससे संबंधित इतनी बड़ी सूचना देने जा रहा हूं आपको कि आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि आखिर क्या हुआ। जी हाँ, आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP नंबर 005864/2024 दायर किया था और ये दायर किया था, रजिस्टर्ड हुआ था यह 6/3/2024 को, मतलब 6 मार्च 2024 को ये दायर किया गया था और यह वेरीफाइड हो गया था 9/3/2024 को। आज इसकी पहली सुनवाई थी, पहला डेट था 15 तारीख को और इसकी सुनवाई आज हुई है। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, पूरी बात हम बताएंगे, लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ है, पहले ये क्लिप देखिए कि कोर्ट रूम में क्या हुआ है। चूंकि सुनील कुमार का पक्ष रखने के लिए फिर आज एक बार राहुल श्याम भंडारी, जो विद्वान अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो खड़े थे और उन्होंने अपनी बातें कही। क्या कहा, ये सुनिए। February 2023. Just allow me to just explain the brief background of the matter. Because what has happened, because our case since beginning was that OBC has been excluded from the purview of reservation in Bihar municipal elections. Because in 2022, this honorable court, comprising of the honorable Chief Justice, has remanded back the matter to Patna High Court at that point of time that please see the compliance of triple test is done for the purpose of reservation in Bihar Municipal Act. Pursuant to that, 4th October 2022 judgment was passed by the then Honorable Chief Justice of Patna High Court, holding that Bihar has failed to comply with the triple test and therefore the elections were directed to be conducted by declaring them as general. The primary point which we raised, that they had a reserve, they had their own schedule under which only EBC were entitled for reservation, not OBC. So our case was that OBC has to be considered for reservation, and that is what is the mandate of triple test, that is what is the mandate of Article 243T subclause 6 of the Constitution of India, which was answered in affirmative lordship. After that, what happens, 4th October 2022 judgment, the state files a review before the High Court. Review was withdrawn with the liberty to comply with the judgment of 4th October 2022, which made it clear, okay, we are giving you permission to form a dedicated commission and do the compliance of triple test and include both OBC and EBC, because the state of Bihar had never undertaken that exercise of finding out the political backwardness. We came I'm so grateful, Roshan. I know, may Yokesh Kaushik, in case we are also looking for the stay of the judgment, because essentially the judgment has ruled that OBC. It's a hell, no?
I'm so sorry, Lord. Elections have been held. Elections were held when Malos has remanded back the matter on 21st of February 2023. And Malos has made it specific that 4 months time is granted because the tenure is still left. So Malos, OBC, Malos has also held, and the judgment is also that OBC has to be considered for the purpose of triple. So the High Court says, We'll like to first hear and then see. all right, I'm so grateful. तो सुना आपने। देखिए हुआ क्या था कि हाई कोर्ट में जो मामला आया था, तो एक्चुअली मेन मामला था सुनील कुमार का, क्योंकि सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हाई कोर्ट में आए थे। देखिए ये बड़ी लंबी कहानी है। पहले मामला हाई कोर्ट में चला था, फिर हाई कोर्ट के बाद माने हाई कोर्ट में ये मामला चल ही रहा था। ओबीसी ईबीसी का मामला था, रिजर्वेशन का मामला था, आप जानते हैं। उसके बाद में उन सारे चीज़ों को दरकिनार करके जब सरकार नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई, तो उसको लेकर सुनील कुमार पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार के बाद रिजर्वेशन देना है, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। इसी बीच में आनन फानन में सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बना दिया था, जो बिहार सरकार की ओबीसी कमीशन थी उसी को, और उसी से सर्वे कराकर उन्होंने दिया था। हालांकि उस डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया था कि इसे डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। लेकिन इन सारे चीज़ों के बाद एक बात आई थी कि ये चूंकि पटना हाई कोर्ट के न्यायाधिकार में है, इसलिए यह मामला पटना हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा था कि आप एक नई याचिका दायर करें हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसकी सुनवाई 4 महीने में करके इस पर ऑर्डर देगा। उसको लेकर किन किन बिंदुओं पर देखना था हाई कोर्ट को, वो सारा चीज़ उसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने ऑर्डर में दिया था। बावजूद चूंकि इस तरह के 3 मामले हाई कोर्ट में थे, जिसमें एक हरिनारायण शर्मा का मामला था, प्रोफेसर रामबली सिंह का मामला था, और मेन मामला सुनील कुमार का था। लेकिन एक तो साल भर लगभग सुनवाई होती रही, कभी सिंगल कोर्ट कभी डबल कोर्ट, और उसके बाद में अंत में ये 2 जनवरी से 4 जनवरी तक इसकी लगातार सुनवाई हुई। उसके बाद ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था। 31 जनवरी को इसका ऑर्डर आया था, और उसमें मेन जो केस था सुनील कुमार का, उसको नीचे कर दिया गया था, और हरिनारायण शर्मा प्रोफेसर रामबली सिंह को ऊपर करके और उन्हीं के मामलों पर यह डिसीजन दे दिया गया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जिस डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, हाई कोर्ट ने उसको डेडिकेटेड कमीशन को सही माना था अपने ऑर्डर में। और उसके बाद एक तरह से कहें कि सुनील कुमार इस केस को हार गए थे, या यूं कहें कि इस मामले का रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन सुनील कुमार ने गजब की जीवट दिखाई, वो अपनी तैयारी में लगे रहे, और इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गए। हालांकि मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुनील कुमार जाएंगे जरूर, इसलिए जाएंगे कि जो एक भ्रम पैदा किया जाता था, कि जो एक भ्रम पैदा किया जाता रहा है पहले से, कि जो हारे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह यह चुनाव जो हुआ है, उसके बाद में बाज़ाब्ता नगर निकायों का गठन हो गया है, माननीय लोग जीत चुके हैं, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, और ये लोग हारे हुए हैं। जबकि ये मैंने बार बार कहा है कि सुनील कुमार ऑलरेडी जीते हुए पार्षद हैं, और पटना में उनका विकासशील और अच्छे मेहनती पार्षदों में उनकी गिनती होती है। उनको अच्छे पार्षद का पुरस्कार तक मिल चुका है, और फिर भी ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन का न्याय सही से मिल सके, इसलिए वो वहाँ गए थे। हाईकोर्ट में जो मामले हुए थे, अगर उसको आप देखें तो देखें कि वहाँ ओबीसी और ईबीसी के मामला को उठाया गया था हाईकोर्ट में, उसको लेके एक भ्रम पैदा हुआ था। फिर
इंटरवेनर बीच में डाल दिया गया था और इस केस को लंबा बनाया गया था। चुनाव का नोटिफिकेशन को देखिए तो चुनाव का नोटिफिकेशन पहले हुआ था 9/9/22 को, लेकिन वो स्थगित हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा नोटिफिकेशन नहीं किया गया, सीधे चुनाव का डेट निकाल दिया गया। जबकि एक बार नोटिफिकेशन हो गया और आपने चुनाव को रद्द कर दिया या उसको रोक दिया, तो फिर दोबारा जब आप डेट निकालते उसके पहले नोटिफिकेशन होना चाहिए था। जो जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया था, फिर दोबारा नॉमिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन सारे चीज़ों में कोई चीज़ नहीं हुआ था। वहीं डेडिकेटेड कमीशन का जो रिपोर्ट था उस पर भी सवाल उठे थे और डेडिकेटेड कमीशन पर तो सवाल था ही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडिकेटेड कमीशन को गलत करार दिया था। खैर, ये सारे चीज़ें थी और इन सारे चीज़ों को लेकर फिर दोबारा सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूरी तरह बातों को सुना और उन्होंने इस केस को लेकर बाज़ाब्ता सरकार को या जो दूसरा पक्ष है उसको नोटिस देने का आदेश दिया है। उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, फिर अगली तिथि को उस पर सुनवाई होगी कि अब अपना क्या पक्ष बिहार सरकार रखती है या बिहार चुनाव आयोग रखती है इस मामले में। चूँकि बिहार सरकार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया है, उसको दरकिनार करते हुए चुनाव कराया है। तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट वाली बात वहाँ होगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की मिट्टी पलीद होना तय है, जैसा जो कानून के जानकार हैं वो बता रहे हैं। तो स्थिति यही बनी हुई है, सारे लोगों को गया है। हालांकि आज जब बात हो रही थी तो कोर्ट में भंडारी साहब ने बाज़ाब्ता कहा भी है, सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन सुप्रीम कोर्ट को से ये प्रार्थना की है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको सीधे क्वैश किया जाए, उसको उस पर स्थगन लगा दिया जाए, चूँकि वो आदेश जो है सो सही नहीं है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों में क्या करता है। आज सुनील कुमार के तरफ से हमने बताया कि विद्वान अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी साहब थे और उन्होंने इन सारे चीज़ों को न्यायालय के समक्ष रखा है। अब देखिए, इसमें और भी जो जानकारियाँ मिलेंगी तो मैं आपके समक्ष आऊँगा, चूँकि लगातार हमारे जो नगर निकाय से जुड़े हुए सम्मानित दर्शक हैं वो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन आज जब ऑथेंटिक जानकारी मिली है तो मैंने सोचा कि विलम्ब से ही सही, लेकिन अभी आपको ये जानकारी दे दूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे मामलों पर आप एक बात का उत्तर जरूर दीजिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब डेडिकेटेड कमीशन को ही नहीं माना था, उस स्थिति में उसे उस डेडिकेटेड कमीशन को सही मानते हुए न्याय दिया गया था, ये आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।